He came in fast, head low, half hunched towards his right shoulder and lashed out with a straight left. वो तेजी से आया, उसका सर नीचे था, अपने कंधे की तरफ थोड़ा सा झुका था, तेजी से बाएं जानिब की तरफ से हमला किया. He missed a right cross, a good slipped the punch, countered with 1-2-3 left that snapped Ali's head back, sending a mild shock coursing through him. उसने दायां हमला बचा लिया क्योंकि गुल ने मुक्का पिसला दिया. मुकाबले में 2-3 मुक्के मारे जिसने अली को पीछे धकेल दिया और जिससे अली को थोड़ा सा सदमा पहुंचा. If Ali had any small doubt about their friendship affecting their fight, it was completely disturbed. और अगर अली को अपनी दोस्ती के असर होने के कोई खदशा था तो वो दूर हो चुका था. Gul left hand was like a pistol pumping jobs one right after another with seeming ease. गुल का हाथ किसी पिस्टन की तरह काम कर रहा था और वो एक के बाद एक घून से बरसा रहा था. He ducked a short right, missed a left hook. Ali trapped him against the ropes just long enough to pour some pushing rights and lefts to Gul's hand midsection. Bong bong gong. Round 1 came to conclusion. वो थोड़ा सा दाएं को झुका और बाएं से घून से मारे. अली ने उसको रस्सियों से पकड़ लिया और उसके ऊपर मुक्के बरसाकर उसको सजा दी. पहले राउंड का फैसला हुआ और बॉन्ग की आवाज़ आई. ओके, कम ऑन टू पेज नंबर 14, राइट. लियारी के both Lariat brothers froze their punches well on its way, ending up a roar of approval for good sportsmanship. दोनों भाइयों ने दूसरे पर मुक्के बरसाना बंद किए और अच्छे खिलाड़ी के नाते जो है साइड पर जाकर बैठ गए. No sooner did the round 2 begin than Ali was off his stool and rushed at Gul like a bull, sending a hard right to his head. जैसे ही बॉन्ग की आवाज़ आई, अली अपने स्टूल से उठा और एक सांड की तरह गुलशेर पर हमला किया. Beads of water exploded from Gul long hair. Side suddenly exploded inside Ali's head and Gul slipped the blow and hit him with a piston-like left on Ali's chin. गुल के लंबे बालों में से पानी की बूंदें गिरी और उसके दिमाग की रोशनी जल उठी. उसने अपने आप को बचाने के लिए उस पर फिर से पिस्टन की तरह मुक्के बरसाए. Uproar and yelling broke out on stadium when Gul crushing blow momentarily unbalanced Ali's leg. स्टेडियम पर हंगामा शुरू हो गया और उसके तेज़ हमलों से अली की टांगें लड़खड़ा गईं. नीदर फाइटर वॉज गिविंग एन इंच. सडनली अ शॉर्ट राइट पंच स्ट्रक गुल स्क्वेयरली ऑन द चिन. दोनों एक दूसरे को मौका नहीं दे रहे थे. अचानक बाएं तरफ से मुक्का गुल के मुंह पर लगा. His long legs turned to jelly and his arms failed out desperately. Ali grunting like a bull threw wild punches from every direction. Gul felt dizzy, disoriented, bobbed and weaved, evading most of the blows. उसकी टांगें लंबी जेली की तरह हो गई. उसके बाजुओं ने काम छोड़ दिया. अली एक सांड की तरह गुर्राता हुआ मुक्के बरसा रहा था. गुल को चक्कर आने लगे. उसे चला नहीं जा रहा था और वो खुद को हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा था. Ali lashed with a haymaker, but the same instant his eye caught another left hook from Gul swung out. Trying to clear the pain in fog, he heard the roaring of the crowd, who seemed to have gone insane. His head cleared to hear the bell sound at the end of the round. अली ने फिर से ज़ोर से हमला किया. उसकी आंख पर मुक्का मारा. अली ने गौता लगाया ताकि दर्द कम हो जाए. अली ने गौता लगाया कि उसका दर्द कम हो जाए. उसे हुजूम का शोर गुल सुनाई दे. जो कि पागल था, उसका दिमाग साफ था. राउंड के अख्ताम की घंटी सुनी. Bong round 3, the final round. Up to now it had been pretty much even, but everyone knew there could be no draw, and there is that round is would decide the winner. तीसरा राउंड ख़त्म हो चुका था और ये राउंड काफ़ी बेहतर था, लेकिन हर कोई जानता था कि मुकाबला हार जीत के बगैर ख़त्म नहीं हो सकता. इस राउंड में फातेह का फैसला होना था. This time, though Ali surprised, it was Gulsher who came out fast, charging across the ring. Ali braced himself but couldn't ward off the barrage of the punches. इस दफ़ा अली को हैरत हुई कि गुलशर बहुत तेज़ी से आया और उसको मुक्के मारने शुरू हुए. उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की मगर नहीं बचा सका. गुल drove Ali hard against the ropes. The crowd got frenzied. So far, the two had fought with courage and bravery. गुल ने अली को रस्सियों की तरफ दिखा दिया. हुजूम गुस्से से पागल हो रहा था. दोनों हिम्मत और बहादुरी से लड़ रहे थे. Ali tapped his gloves and commenced his attack anew. Gul, throwing
बॉक्सर्स कॉशन टू द विंड जंप इन टू मीट हिम बोथ पाउंडेड अवे। अली ने अपने दस्ताने ठीक किए और अपना नया हमला किया। गुल ने बॉक्सर की हिदायत को एक तरफ रखते हुए मुकाबले के लिए छलांग लगाई। दोनों ने भरपूर मुकाबला किया। Neither gave an inch and neither fell to the canvas. Ali's left eye was tightly closed. Coral red blood poured from Gul's nose. They fought toe to toe. दोनों में से एक भी इंच पीछे नहीं हो रहा था, ना ही कोई कैनवस पर गिरा। अली की बाईं आंख सख्ती से बंद थी और सुर्ख खून गुल की नाक से बह रहा था। उन्होंने कांटे का मुकाबला किया। The sound of their blows were loud in contrast to the silence of crowd. उनके मुक्कों की आवाज़ हुजूम की खामोशी में सुनाई दे रही थी। द रेफरी वॉज स्टन्ड बाय देयर सैवेजरी। रेफरी उनके वहशियानापन से हैरान था। बॉन्ग 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 बेल साउंडेड ओवर एंड ओवर अगेन। और बॉन्ग बॉन्ग बार बार घंटी बज रही थी। अली एंड गुल वर पास्ट हेयरिंग देयर ब्लोज कंटिन्यूड टू पाउंड ऑन ईच अदर लाइक हेल स्टोन्स। अली और गुल नहीं सुन रहे थे, उनके मुक्के एक दूसरे पर ज़ालाबारी की तरफ बरस रहे थे। फाइनली द रेफरी एंड द टू trainers pried Ali and Gul apart. Cold water was poured over them to bring them back to their senses. आखिरकार रेफरी और ट्रेनिंग देने वालों ने अली और गुल को बमुश्किल अलग किया। उन्हें हवास में लाने के लिए उन पर ठंडा पानी डाला गया। They look around and then rush towards each other. A cry of alarm surged through stadium. उन्होंने चारों तरफ देखा, उसी के ऊपर लपके और पूरे स्टेडियम में अलार्म की आवाज़ गूंज पड़ी। Was this fight to death instead of boxing match? The fair scene gave way to wave upon the cheering as the two Riyad brothers embraced at the conclusion of final round. यह लड़ाई बॉक्सिंग के बजाय मौत की लड़ाई थी। यह खौफ फौरन ख़त्म हुआ जब खुशबू भरी आवाज़ में की लहरें गूंजने लगी, क्योंकि दोनों लियारी भाई आखिर राउंड में एक दूसरे के गले मिले। नो मैटर व्हाट द डिसीजन वाज, दे न्यू दे वुड ऑलवेज बी चैंपियंस टू ईच अदर। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ैसला कुछ भी हो, लेकिन वो एक दूसरे के लिए चैम्पियन थे। No matter what the bong, ladies and gentlemen, the winner and the champion of the grand finale is announcer turned the point to the winner and found himself alone, arm in arm. The champions had already left the ring. बॉन्ग बॉन्ग ख़वातीनों हज़ार फाइनल का चैंपियन ऐलान करने वाला मोड़ जीतने वाले की निशानदेही कर सके, लेकिन पीछे उसके कोई भी नहीं था और तो दोनों चैंपियन एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बाहर रिंग से जा रहे थे। Thank you so much for your time. I hope you have watched my video and listened to my video very carefully. If you have any kind of difficulties, kindly contact the school staff or any of your school staff, so I will help you out inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.